Hello, hello students. Hi. Good evening. How are you? How is life? So now I'm going to start our next topic, and that is trigonometry. And this trigonometry is for class 10th. Okay. So now we will discuss about trigonometry. Everything we have to discuss in detail. Everything. Right from very beginning. Okay, so right from the origin of the trigonometry we are going to discuss each and everything, so you can understand each and everything includes everything, right? Okay, now this is the starting point, and now this is for class 10th. Trigonometry, right? So what is the meaning of trigonometry? Trigonometry का मतलब क्या है? The first thing, tri means three, gon means sides, and metron means measurement or to measure, right? So trigonometry means three sides measurement. So now we can say that trigonometry is the branch of mathematics which deals with the sides and angle of a triangle. So it deals, क्या करेगा? It deals with the side and angle of a triangle, right? So here it starts. So as the name suggests, what is this? This is tri, means three sides, gon means side, and metron means measurement. Three sides measurement. Fine. Now we are coming to the main point, right? So we start with our measurement with this right angle triangle A, B and C. A, B and C. इसके बगैर हम नहीं कुछ कर सकते, ठीक है? तो अगर आपने ट्रिगोनोमेट्री पढ़नी है, right, deals with the sides and angles of a triangle, sides and angles. अगर आपको ट्रिगोनोमेट्री पढ़नी है, so in that case you have to be very much careful about right angled triangle, right? This is right angle triangle. Fine. Right angle means one angle must be at 90 degree. I think you have already gone through it. Fine. Now, so what is this? Is called base, this is height, and this is hypotenuse, right? This is hypotenuse. This is the longest branch. This is the longest side of triangle. इस triangle की longest side जो होगी वो कौन सी होगी? Hypotenuse होगी. All fine? I think यहाँ तक कोई भी आपको दिक्कत नहीं है. Fine. Now अब बात ये, हम बेस और हाइट की बात नहीं करेंगे, हम इसको पर्टिकुलर नाम देंगे, है ना? अब ट्रायंगल की जरूरत कैसे पड़ी? फॉर एग्जाम्पल मैं चला गया कुतुब मीनार के सामने, ठीक? अब कुतुब मीनार वहां, मैं यहाँ, कुतुब मीनार वहां, मैं यहाँ, मुझे कुतुब मीनार की हाइट मेजर करनी थी. क्या करेंगे? ये है कुतुब मीनार और यहाँ मैं खड़ा हूँ, ठीक है? अब मुझे ये एंगल मेजर करना है, इससे कितनी हाइट है, यानी कि ये वाली डिस्टेंस मेजर करना है. तो यहाँ से यहाँ तक हम एंगल मेजर कर लेंगे, ये हमारे को हाइट मिल जाएगा. यहाँ से यहाँ तक आप डिस्टेंस ले लोगे. फाइन. तो यहाँ से ऐसी सिचुएशन से निकल के आपका ट्रिगोनोमेट्री का कंसेप्ट आया. फाइन. कूल. ओके. नाउ अब अगर हम बात करें इसके आगे की अगर हम बात करें तो इसको हम रब करते हैं. ऐसा रब कर दिया,
ओके नाउ अब थोड़ा सा इसको हम इसके लैंग्वेज में बात करेंगे, इसके लैंग्वेज में, यानी कि इसकी लैंग्वेज क्या होगी। सो दिस इज ए बी एंड सी, राइट। दिस इज 90 डिग्री और ये हमारा क्या है, दिस इज आवर एंगल, राइट। तो अब हम अगर हम इसकी बात करते हैं एंगल सी की, तो हम एंगल सी के लिए क्या लिखेंगे, दिस इज एडजेसेंट साइड, adjacent side to angle C, right। ये क्या होगा, this is opposite side to angle C and this is nothing but hypotenuse, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट। आई होप स्कूल। नाउ अगर हम इसकी बात करें और इसको हमने ऐसे रब कर दिया, अब थोड़ी सी हम और इसमें चेंजेस लाते हैं, ये ऐसे, ये ऐसे। अब हम इसकी बात करते हैं, एंगल ए की बात करते हैं, दिस इज 90 डिग्री बी एंड सी, ओके। अब हम इस एंगल को काउंट करना चाहते हैं, इस एंगल को, तो इस एंगल के लिए, एंगल ए के लिए ये क्या होगा, दिस साइड विल बी adjacent side to angle A, and what is this, this is opposite side to angle C, right। so adjacent side and opposite side की हम बात कर लेंगे, right, है ना। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, इसको थोड़ी सी आप लैंग्वेज चेंज भी कर सकते हो, और साइड ऑपोजिट टू एंगल सी, ऐसा भी लिख सकते हैं आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और साइड ऑपोजिट टू एंगल सी, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई दो राय नहीं है, फाइन। और यहां इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइड एडजेसेंट टू एंगल सी। ये लैंग्वेज का ही सिर्फ खेल है और कुछ कोई खेल नहीं है ना। एंड साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, ऐसा भी लिख सकते हैं, राइट। सो इसमें इतना चेंज करने की या ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम इसी ट्रायंगल से हमारे को कुछ बेसिक क्वांटिटीज और बेसिक कुछ फैमिली मेंबर्स को काउंट करने हैं, और उस फैमिली मेंबर को काउंट करने के बाद हमारा ट्रिग्नोमेट्री के कैलकुलेशन और ट्रिग्नोमेट्री की जो क्या बोलते हैं रणनीति जो होती है वो हमारी स्टार्ट हो जाएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स में भी, और इसकी यूज फिजिक्स में भी होती है, ठीक है। एवरीवेयर इट इज यूज, जहाँ भी एंगल की बात आएगी वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है। अगर आप इंजीनियरिंग करेंगे वहाँ भी आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से आपने करना है, इसमें कोई भी दो राय, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, फाइन। यहाँ पर कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, फाइन। चलिए इसको हम यहाँ से हमने रब कर दिया, राइट। अब बात करते हैं, अब हम यहाँ से यहाँ के बाद बात करते हैं एंगल की, हम काउंटिंग करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू काउंट एंगल, है ना। एक ट्रायंगल ले लेते हैं और उससे हम काउंट कर लेंगे। दिस इज ए सी एंड दिस इज 90 डिग्री, सो दिस इज बी। पहले हम पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। सो पाइथागोरस थ्योरम को अगर आप यूज कीजिएगा पाइथागोरस को, तो पाइथागोरस यूज करने से आप क्या ले सकते हैं, हम पूरा पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि AC स्क्वायर एंड प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल, AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर एंड प्लस AB स्क्वायर, यानी कि दिस इज कॉल्ड hypotenuse square is equal to base square
एंड प्लस हाइट और परपेंडिकुलर स्क्वायर, इसको हम परपेंडिकुलर भी बोलते हैं स्क्वायर, ठीक है। इसको ऐसे लिखेंगे, ऐसे आप याद रखिएगा, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। फाइन। सो नाउ अब हम बात करते हैं, चलिए इसको थोड़ा सा और आगे हम बढ़े, इसको मैं सब कुछ रब कर दे रहा हूं मैं। अब क्या होगा, एंगल है, तो ये क्या लिखेंगे, साइड opposite to angle A, and what we will write, side adjacent to angle A, राइट। और देखिए याद रखिएगा, एंगल A जो है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल A को हम ऐसे भी लिखेंगे अब आगे से, ठीक है ना, इससे हम एंगल A को भी इस तरीके से लिख सकते हैं। सो डोंट गेट इनटू कंफ्यूजन। फाइन, ओके, सो वी आर टेकिंग अ ब्रेक एंड देन फिर हम मूव करते हैं। So now we should move on further, and this is for the calculation of now angles, right? So what we say, this is angle A, right ना, तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या लेंगे, sine of angle A, and this is equal to, sine of angle A is side opposite to angle A and divided by hypotenuse, ठीक है। So this is, so what is side to opposite to A, this is BC and divided by hypotenuse is AC first, and this sine, this complete, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, we can write sine A, in short we can write as sine A, fine। So sine A will be equal to BC by AC, याद रखिएगा। So this is our first. Second, cosine of angle A, and this is equal to side adjacent to angle A and divided by hypotenuse, and this cosine of A can be written as cos A, and side adjacent is what, AB and divided by AC. This is equation number 2, you will have to keep in mind. So cosine of angle A को हम लिखते हैं, in short represent करते हैं cos AC. Now tangent, second is tangent of एंगल ए, सो क्या लिखेंगे, टेंजेंट ऑफ एंगल ए को क्या लिखेंगे, सो व्हाट वी कैन राइट, टेंजेंट ऑफ एंगल ए क्या लिख सकते हैं इसको। सो नाउ हियर वी आर डिस्कसिंग टेंजेंट ऑफ ए, राइट। सो टेंजेंट ऑफ ए मींस व्हाट, दिस इज हाइट मींस अपोजिट, साइड opposite to angle A and divided by side adjacent to angle A, right? So we can write here, so now I want to rub something, so now we can write, so tangent, so tangent को हम क्या लिखेंगे, so tangent को हम short में लिखते हैं tan A, and this will be equal to side opposite to A means BC and divided by AB, right? So we are having third one, right? So secant of angle A, secant of angle A का मतलब this is 1 of second, ठीक, ये रिवर्स होता है हमारा cos A का, यानी कि cosine of A का, cosine of A का रिवर्स होता है, ठीक है। सो व्हाट विल बी कोसाइन ऑफ ए का, इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, तो ये होगा, दिस इज हाइपोटेनस, गेट इट करेक्टेड, हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, सो क्या होगा, हाइपोटेनस इज AC and divided by adjacent to is AB, और cos
क्या था, AB by AC. So this is, इसको हम शॉर्ट में क्या लिखेंगे, this is written as sec A. Fine. So we have got fourth one also. Now cotangent. अब हम बात करते हैं इसकी, cotangent of A. Cotangent of A. Right? So cotangent of A की हम बात करते हैं लाइट आने के बाद. Now cotangent of A. So cotangent of A is, this is the reverse of tan A. याद रखिएगा, this is the reverse of tangent A. So now cotangent of A will be equal to, this will be equal to, what is tan A? BC upon AB, means this one, this side upon this side. So what will be cotangent? Cotangent will be side, we can write AB upon BC, means AB means side adjacent to angle A and divided by side opposite to angle A, right? So this is cotangent. Short form में क्या लिखेंगे हम? Short form में we can write, this is cot A will be equal to tan A and this will be equal to AB upon BC. So you have to keep in mind, right? So this is our fourth one. So fourth, no, this is our fifth one. So now the last one is cosec, and the last one is, we have got cosecant of angle A, cosecant of angle A, and this is the inverse of angle, sine of angle A, and this is, sine was height opposite to hypotenuse, so this will be equal to hypotenuse upon side opposite to angle A. So we can write here, so 1 upon sine A is equal to side hypotenuse. What is hypotenuse? AC upon AB. AC upon BC. So this is, and in short we can write it cosec A. So this we have to keep in mind all 6, and I would like to summarize here and here only, and so that we should keep in mind and we can move further for our other things, right? So how we will summarize, we have to summarize here. So now what I am leaving, this is this triangle I am leaving, okay, and this thing you have to keep in mind every time. And what is this? I am writing just over here, right? So this is, so first sine A, and this is the inverse of cosec A. It means sine A is equal to 1 upon cosec A, and this will be BC upon AC. BC upon AC. It means sides opposite to A and divided by hypotenuse. What is cos A? Cos A, and this is equal to 1 upon sec A. Right? 1 upon sec A. So what will be? This is side adjacent to. So this is AB by AC. Right? Base upon hypotenuse. What is tan? Tan A, and this is equal to 1 by cot A. So what is this? Tan A is equal to cot A. What is this? Well, tan A is equal to cot A. So tan A is height. What is this? Height. BC upon AB. Right? So if you are asking that if tan A is equal to BC upon AB, so what will be cot A? So cot A will be equal to AB upon BC, right?
Fine. So this thing we have to keep in mind, and to remember, now we can use this is h hypotenuse, this p perpendicular, and this b base. Hypotenuse, perpendicular, and base. So we can do one thing here. One thing, what? So sin A means perpendicular upon hypotenuse, right? Cos A, base upon hypotenuse, and tan A is perpendicular upon base. So we can, in short, we can remember this, right? So P stands for perpendicular, that is making 90 degree, right? B is base and H is hypotenuse. So you have to keep in mind, and this we have to learn this every time you have to remember. This is 3-star relation. 3-star relation. Okay? Every time you have to remember. Fine. So now we are moving towards other thing. Now अब आपसे पूछा जाएगा कि हम इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट? हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे? देखिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपके पास क्वेश्चन रहेगा, if sin A is equal to 2/3, then find cos A, ये आपके पास रहेगा, है ना? If sin A is equal to 2/3, तो आपसे पूछा जाएगा कि cos A की वैल्यू बताओ, ठीक है? So what we can do? बोलिए, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? आपको मैं प्रोसेस बताता हूँ. एवरी टाइम यू हैव टू यूज दिस प्रोसेस, एवरी टाइम. देखिए, सबसे पहली बात, लेट, ये रेशियो है ना, दिस इज द रेशियो, ये सब रेशियो है. और एक और मजे की बात आपको बता देता हूँ, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है ए बी और सी, और यहाँ पर एक हमने एक और ट्रायंगल बना दिया एम और एन, और इसी को इंक्रीज करके थोड़ा सा और इसको यहाँ पर हमने एक्सटेंड कर दिया इसको, और इसको एक और ट्रायंगल बना दिया हमने, और इसका नाम कर दिया P इंटू आर. सो रेशियो आपका जितना भी रेशियो होगा, ये सब जितने रेशियो हैं आपके, वो सब सेम रहेंगे. कैसे? देखिएगा, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे. ट्रायंगल ए एम एन एंड ट्रायंगल ए बी सी, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल होंगे, ये प्रूवन है. ऑब्वियसली परपेंडिकुलर डबल ए से, डबल ए थ्योरम से इसको प्रूव कर सकते हैं. सो ए एंड ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, ठीक है? और अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए एम बाय ए बी इज इक्वल टू एन एम बाय बी सी, ठीक है? एंड इज इक्वल टू ए एन एंड डिवाइडेड बाय ए सी. ये तीनों आपके सेम रेशियो में रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. उसी तरीके से अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, इस वाले ट्रायंगल की, बड़े वाले की, यानी कि ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए पी आर की अगर हम बात करें, तो यहाँ भी रेशियो सेम रहेगा, और ये दोनों ट्रायंगल जो होंगे वो सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे. ये प्रूवन है. ये आपको रख के चलना है, याद करके चलना है. अब क्या कैसे करेंगे? ए बी सी, देखिए तो ए बी सी यानी कि ए पी, अगर ये ए बी पहले लें तो ए बी डिवाइडेड बाई ए पी, ठीक है? इनका बी सी, तो इसका किसका होगा? बी सी डिवाइडेड बाई पी आर, और इनका ए सी, तो इनका हाइपोटेनस क्या होगा? ए आर. ये सब एक रेशियो में रहेंगे, ठीक है? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक पॉजिटिव क्वांटिटी मान लेते हैं, लेट इज इक्वल टू के एंड दिस इक्वल टू के, वेयर के इज एनी पॉजिटिव क्वांटिटी. ये हम तुम्हारा कोई पॉजिटिव क्वांटिटी होगा, ये हमारा पॉजिटिव क्वांटिटी हम मान लेंगे. और अगर हम ये पॉजिटिव क्वांटिटी मान लेते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं? हम यहाँ पर लिख सकते हैं, देखिए हमारा क्वेश्चन, अब क्वेश्चन पर आते हैं. नाउ हमारा सॉल्यूशन और कैसे तैयार करते हैं, देखिए, ठीक है? अब हम, ये हमारे को समझ के था, इससे याद रखना था. अब हमारे को दिया साइन ए, और साइन ए को क्या मान लें? 2k/3k लेट कर लें, एंड k क्या है? इज एनी पॉजिटिव क्वांटिटी. ऐसे ही सॉल्व करेंगे इसको.
is any positive quantity. ठीक है, so अब हम बात करते हैं, ये हमारा ट्रायंगल, ये ट्रायंगल आ गया, दिस इज ए, और ये आपका 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री, और ये हमारा बी हो गया, ये सी हो गया। तो आपको साइन की वैल्यू दी हुई है, तो साइन का मतलब क्या हुआ कि साइन का मतलब हाइट, दिस इज 2k, और ये आपका 3k दिया हुआ है। सो व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू कैलकुलेट ए बी। तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करें, बाय पाइथागोरस थ्योरम अगर हम यूज करें, बाय पाइथागोरस थ्योरम, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम लिखेंगे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। सो ए बी स्क्वायर इज व्हाट हमें कैलकुलेट करना है, हर ठीक है, बी सी हमें दिया हुआ है तो 4k स्क्वायर, और ए सी दिया हुआ है 9k स्क्वायर। सो व्हाट इज ए बी, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट 9k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर, सो दिस विल बी इक्वल टू, ये तो होगा 9 minus 5, so this is root 5k, ठीक है, राइट। सो हमारे को ए बी मिल गया, अब आपको cos a की वैल्यू चाहिए थी, so cos a is what, cos a is based upon hypotenuse, cos a is based upon hypotenuse, यानी कि a b and divided by, this is a b based upon hypotenuse, a b by a c, so this is equal to, what is a b is root 5k divided by 3k, this gets cancelled, so root 5 by 3। और हमेशा याद रखिएगा साइन ए और कॉस ए की वैल्यू हमेशा ही लेस देन 1 आती है। व्हाई? बिकॉज इस सब इसके डिनोमिनेटर में सबसे बड़ी क्वांटिटी होती है एंड दैट क्वांटिटी इज हाइपोटेनस। हाइपोटेनस इसके डिनोमिनेटर में होता है, साइन और कॉस के दोनों के, देखिए यहाँ पर साइन और कॉस के, ये हाइपोटेनस है 3k और ये हाइपोटेनस है 3k, यानी कि ये दोनों डिनोमिनेटर में होता है, तो हमेशा ही साइन के एंगल की वैल्यू, साइन ए और कॉस ए की वैल्यू लेस देन 1 आएगी, हमेशा याद रखिएगा। फाइन, सो दिस इज द वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके, नाउ वी आर हैविंग अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स टू सॉल्व, सो वन बाय वन वी विल सॉल्व इट, but this is the way and these are the relations which we have to keep in mind every time we have to keep in mind, and it starts right from class 10 and it is not going to end, it is not going to meet and end, इसका कहीं अंत नहीं है, एवरीवेयर, पीएचडी भी करोगे तब भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, राइट, एवरीवेयर यू हैव टू यूज। सो अभी से रट डालो, अभी से याद कर डालो, आगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, राइट। सो अब हम इसके आगे कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे और देन आफ्टर फिर हम मूव करेंगे। ओके, थैंक यू।